یہ ان دنوں کی بات ہے جب پاکستان بھارت سے الگ نہیں ہوا تھا۔ بھارت کا بارڈر افغانستان کے بارڈر کو چھوتا تھا۔ ہم لوگ افغانستان کے پاس ہی رہتے تھے، یعنی ہمارا گھر بارڈر کے پاس تھا۔ جب میری شادی ہوئی تو میں اور بھی زیادہ بارڈر کے قریب آ گئی تھی۔ میں اور میرا شوہر اکثر ایک دوسرے سے مذاق کرتے کہ ہماری محبت ان بارڈروں سے بھی آگے جائے گی۔ ہم لوگ تو یہ باتیں مذاق میں کرتے تھے اور پھر ایک دن ہمارا مذاق سچ بن گیا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب میاں بیوی دن بھر کی باتیں ایک دوسرے سے کرتے ہیں۔ اس رات بھی ہم دونوں ایک دوسرے سے طرح طرح کی باتوں میں مگن تھے۔ تبھی میں نے اپنے شوہر کی ماں کے بارے میں ایک غلط بات کہہ دی۔ ایسا اس لیے ہوا تھا کہ میری دن کے وقت ان سے اچھی خاصی بحث ہوئی تھی اور انہوں نے میرے خاندان والوں کے بارے میں بہت ہی گھٹیا باتیں کی تھی۔ اب ظاہر ہے کہ میں اپنی ساس کو تو جواب نہیں دے سکتی تھی۔ ایک تو وہ مجھ سے عمر میں بڑی تھی اور دوسرا طاقتور بھی تھی۔ اگر میں ان سے کچھ کہہ بھی دیتی تو خدا جانے وہ میرا کیا حال کرتی۔ بس اسی وجہ سے میں چپ چاپ اپنی ساس کی بات تو سن لیتی تھی، مگر اس کے بعد میں اپنے شوہر سے اپنی ساس کی شکایت ضرور کرتی تھی، کیونکہ مجھے اپنی ساس سے بہت گلے شکوے تھے جو کہ میرے دل میں نہ جانے کب سے تھے۔ اور آج میرے شوہر کے سامنے جب میں نے یہ بات کی تو اس نے مجھ سے کہا کہ اگر تم نے ایک اور بار بھی میری ماں کا نام لیا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اس وقت ہماری شادی کو صرف 2 مہینے ہی ہوئے تھے۔ ہماری محبت کی شادی تھی۔ میں نے سوچا کہ میرا شوہر مجھے یہ بات کبھی نہیں کہہ سکتا، چاہے میں اس کی ماں کی جان ہی کیوں نہ لے لوں، وہ تو مجھ سے ہمیشہ محبت کرے گا۔ پر یہ عورت کی غلط فہمی ہوتی ہے۔ میرے شوہر کو وہ شبد ایک نہ ایک دن کہنا ہی تھا کہ میرے شوہر نے گرجتے ہوئے مجھے طلاق دے دی، جیسے میں اس کی زندگی میں آج سے پہلے کہیں تھی ہی نہیں۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہ گئی تھی کہ ایسا وہ کیسے کر سکتا ہے۔ وہ میرا شوہر تھا اور اتنے سالوں کا یہ رشتہ صرف 3 شبد کہنے سے کیسے ٹوٹ سکتا تھا۔ میں اپنے شوہر کو اچھے سے سمجھتی تھی، وہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن ظاہر ہے ایک مرد سب سے زیادہ محبت اپنی ماں سے ہی کرتا ہے، اور میں نے بہت بڑی غلطی کر کے اپنے شوہر کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا تھا۔ جب اس کے سر سے غصہ اترا تو وہ بھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے بیڈ پر پڑی چادر اپنے سر پر اوڑھ لی۔ یہ کیا کر رہی ہو ماہرہ؟ کیا کر رہی ہو؟ تمہیں نظر نہیں آتا؟ اب تم میرے لیے غیر ہو گئے ہو، مجھے یہاں سے جانا ہوگا۔ تمہارا اور میرا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ یہ سننا تھا کہ وہ میرے قدموں میں پڑ گیا۔ ایسے تو نہ کہو ماہرہ، تم میری محبت ہو، بیوی ہو میری۔ میں نے جو کچھ کہا ہے اسے بھول جاؤ۔ بھول کیسے جاؤں سفیان؟ بھولنا تو مجھے اس رشتے کو ہوگا جو کہ اب ٹوٹ چکا ہے۔ اب تم میرے شوہر نہیں ہو، دوبارہ مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش بھی مت کرنا۔ یہ سننا تھا کہ سفیان اپنا ماتھا پیٹ کر رونے لگا۔ یہ میں نے کیا کر دیا ماہرہ؟ تمہاری بیوقوفی نے سب کچھ برباد کر دیا۔ تم ابھی بھی اسے میری بیوقوفی کہہ رہی ہو سفیان؟ اللہ نے طلاق دینے کی اجازت مرد کو دی ہی اس لیے ہے کیونکہ اس کے جذبات پر اسے اچھے سے قابو کرنا آتا ہے، ورنہ وہ اختیار عورت کے پاس ہوتا تو دن میں 20 بار طلاق ہو جاتی۔ تمہیں بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اب مجھے چھوڑ دو، مجھے کہیں جا کر مر جانے دو۔ میں بھی رونے لگی اور سفیان بھی۔ اب مجھے چھوڑ دو، مجھے کہیں جا کر مر جانے دو۔ میں بھی رونے لگی اور سفیان بھی۔ ہم دونوں کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے کیونکہ اس معمولی نفرت کے پیچھے ہماری بے پناہ محبت تھی جو کئی سالوں کی تھی۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو بہت چاہتے تھے۔ ہماری محبت نکاح کے رشتے سے پہلے کی تھی۔ اب میں اور سفیان اپنے اپنے شبدوں پر پچھتا رہے تھے، مگر اب کچھ ہو نہیں سکتا تھا کیونکہ ایک بندھن جس نے ہمیں ساتھ رہنے کی اجازت دی تھی وہ اب ٹوٹ چکا تھا۔ دیکھو ماہرہ، تم کہیں مت جانا، تم اپنی عدت یہیں پوری کرنا۔ میں تمہارے کمرے میں نہیں آؤں گا، تمہیں ہاتھ لگانے کی کوشش بھی نہیں کروں گا، لیکن ایک بات میری یاد رکھنا کہ میں تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا۔ چاہے تم ساری زندگی مجھ سے دور رہو، مجھے خود کے قریب نہ آنے دو، لیکن پھر بھی میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا۔ سفیان روز روتا اور یہی بات کہتا۔ میری ساس، نندو، میرے سسر، کسی کو بھی اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ ہم دونوں کی طلاق ہو چکی ہے۔ ہم دونوں مجرموں کی طرح رہ رہے تھے، ایک کمرے میں ہوتے ہوئے بھی ہم میں دوری تھی۔ ہم ایسے رہتے جیسے کوئی اجنبی ہے، پر ہم نے کسی کو یہ بات محسوس نہیں ہونے دی، ورنہ تو پھر ہمیں ہمیشہ کے لیے الگ کر دیا جاتا۔ میرے بابا اور بھائی غیرت میں آ جاتے اور سب محلے والے کہتے کہ یہ سب گناہ ہے، اور تھا بھی ایسا ہی۔ لیکن ہم دونوں محبت سے مجبور تھے، دن رات نمازیں پڑھتے اور دعائیں کرتے کہ یا اللہ ہمیں اس پریشانی کا کوئی حل دے دے۔ ایک دن سفیان ٹوٹا ہوا گھر آیا، کہنے لگا کہ ماہرہ، اس پریشانی کا کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ تم کسی اور مرد سے شادی کر لو اور پھر وہ تمہیں طلاق دے دے۔ لیکن اگر ہم نے شرط باندھ کر نکاح کیا تو وہ بھی غلط ہے، اسلام میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔
अब कुछ ऐसा हो कि वो आदमी तुमसे शादी करे और फिर खुद ही तुम्हें तलाक दे दे। हम पहले से उसको ये ना बताएं कि ये शादी हम हलाले के लिए कर रहे हैं, बस वो तुम्हें खुद तलाक दे दे तो उसकी मर्जी, वरना फिर तुम उसी की हो जाओगी। सुफियान ये कहकर रोने लगा। मैंने कहा कि तुम ऐसे मत सोचो, मैं हमेशा तुम्हारी ही रहूंगी और ये हलाला वलाला मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ। मुझे तो इस सब में पड़ना ही नहीं है। सारी जिंदगी भले ही चाहे यूं ही गुजर जाए, लेकिन मैं कभी भी किसी और के साथ नहीं जाऊंगी। मेरी बात सुनकर सुफियान की आंखों से और आंसू बहने लगे। माहिरा, मैं सब जानता हूँ, लेकिन तुम्हें भी मेरे मिजाज का नहीं पता। मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और फिर कुछ महीनों में हमारे बच्चे ना हुए तो माँ वैसे ही मेरे पीछे पड़ जाएगी कि दूसरी शादी करो। तुम जानती हो कि मैं ये सब कुछ बिल्कुल भी कबूल नहीं कर सकता, इसलिए हमें कहीं दूर जाना होगा, किसी ऐसी जगह पर जहाँ हमें कोई जानता ही ना हो। तुम्हें पता है ना कि गांव में अगर मैंने तुम्हारा निकाह किसी से करवा भी दिया तो पूरे गांव में तूफान आ जाएगा। सब लोग यही कहेंगे कि सुफियान बेगैरत हो गया, उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी। और फिर वो आदमी वो क्यों तुम्हें तलाक देगा? तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें तो कोई भी मर्द नहीं छोड़ सकता। बस मुझ पर ही शैतान सवार हो गया था जो मैंने तुम्हें तलाक के शब्द कह दिए। अल्लाह मुझे एक और मौका दे दे, मैं तुम्हें शहजादी बनाकर रखूंगा। मेरा शौहर बहुत जज्बाती हो रहा था। मैं उस वक्त सिर्फ खामोश ही रही, क्योंकि मैं उसके जज्बात को हवा नहीं देना चाहती थी। सुबह हुई तो मैं भी इस बात पर सोच सोच कर एक नतीजे पर पहुंच चुकी थी कि हाँ, हमें यहाँ से कहीं दूर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि गांव में तलाक, शादी, हलाला ये सब बहुत ही ज्यादा नाजुक काम था। कोई भी अगर हमारे इस प्लान के बारे में जान जाता तो हम पर थूकता, क्योंकि जिस इलाके में हम रहते थे वहाँ ये बात बहुत ही ज्यादा बुरी समझी जाती है कि कोई मर्द एक औरत को तलाक दे दे और फिर उसका निकाह किसी और से करवाया जाए। ये बात तो कोई मर्द कभी अपनी सोच में भी नहीं ला सकता। लेकिन जब एक बार हमसे गलती हो जाती है तो फिर उसका भुगतान तो करना ही पड़ता है। सुफियान ने मुझसे कहा कि अगर हम बॉर्डर पार करके अफगानिस्तान चले जाएं तो वहां जाकर हमारे लिए इतनी मुश्किल नहीं होगी। देखो, वहां हमें कोई जानता भी नहीं होगा। अगर तुम जाकर किसी मर्द से निकाह कर लोगी तो कौन सा वो तुम्हें कैद करके रख लेगा। वो लोग भी हमारी ही तरह गुस्से वाले हैं, और वो औरतों की खूबसूरती के तो भूखे नहीं। तुम भी जानती हो वहां पर एक से बढ़कर एक खूबसूरत औरत है। अगर कोई तुमसे शादी कर लेता है ना तो वो तुम्हें तलाक भी दे सकता है। हम किसी ऐसे गर्म मिजाज आदमी से तुम्हारी शादी करेंगे जो तुम्हें थोड़े दिन बाद खुद ही तलाक दे देगा। ये सुनकर मैं रोने लगी। मुझे पसंद नहीं कि मैं किसी और की दुल्हन बनूं, मुझे मर जाने दो बस। मेरा दिल इस ख्याल से ही फट रहा था कि सुफियान के अलावा मैं किसी और के साथ वक्त बिताऊंगी, लेकिन क्योंकि मुझे उसके साथ रहना था, दोबारा से हमें अपनी मोहब्बत की जिंदगी को शुरू करना था, तो ये सब फिर जरूरी था। बॉर्डर पर सुफियान का एक दोस्त था। सुफियान ने उसे सारी बातें तो नहीं बताई, बस यही कहा कि मैं अपनी माँ और बहनों से तंग हूँ, कुछ समय के लिए अपनी बीवी को लेकर इस बॉर्डर के पार जाना चाहता हूँ ताकि इन लोगों को भी मेरी कदर हो। सुफियान ने उससे बात इस तरीके से की थी कि वो शख्स भी मान गया, क्योंकि मर्द हमेशा एक दूसरे की मजबूरी को समझ जाते हैं। तो सुफियान के दोस्त ने उसकी बात मान ली। उससे वादा किया कि हाँ, मैं तुम्हें ये बॉर्डर पार करवा दूंगा, लेकिन अगर तुम पकड़े गए या मारे गए तो इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। मैं और सुफियान एक दूसरे की खातिर मरने को भी तैयार थे। एक अंधेरी रात हम दोनों ने वो बॉर्डर पार कर लिया, जिसके बारे में हम कभी मजाक किया करते थे। हम दोनों बहुत डरे सहमे हुए थे, क्योंकि हम इस इलाके के बारे में कुछ नहीं जानते थे। मगर हैरत की बात तो ये थी कि हमें इस इलाके वालों की लैंग्वेज समझ आती थी और हम उनसे मिलते जुलते भी थे। उनके कपड़े, खाना पीना, उठना बैठना, रहना सहना सब कुछ हम जैसा ही था। बॉर्डर की दूसरी तरफ उस छोटे से गांव को सुफियान पहले से जानता था। उसने अपने दोस्त से सारी जानकारी हासिल कर रखी थी। मैंने सुफियान से कहा कि हमारे पास तो यहाँ से जाने का रास्ता होगा या नहीं, इस बात की गारंटी नहीं है। काश कि हम अपने ही देश के किसी दूसरे हिस्से में चले जाते तो हमें इतना डर डर कर ना रहना पड़ता। सुफियान ने कहा कि अगर हमारी मौत लिखी है तो वो तो यही होकर रहेगी, तुम्हें डरना नहीं चाहिए। हम लोग चलते चलते एक मस्जिद के पास रुक गए थे, क्योंकि काफी थकावट हो रही थी और पास खाने पीने को भी कुछ नहीं था। वहां रुकते ही सुफियान ने मेरी तरफ देखा और बोला, क्यों ना हम यहाँ किसी मौलवी से इस बारे में बात करें, क्या पता यहाँ के मौलवियों की अलग राय हो और हमारे लिए कोई आसानी हो जाए। हाँ चलो ठीक है, ऐसा ही करते हैं। हम दोनों उस मस्जिद में चले गए। मैंने अपने चेहरे को अच्छे से ढांप लिया। सुफियान ने इमाम साहब से हाथ मिलाने के बाद उन्हें बताया कि ये मेरी बीवी थी। उस आदमी ने चौंक कर मुझे देखा जैसे कि ये कोई बहुत बड़ा जुर्म हो। तो तुम इसे अपने साथ लिए क्यों घूम रहे हो? क्या तुम इसकी शादी कहीं और करना चाहते हो? क्या यतीम है? उसने मेरी तरफ देखकर कहा था, यतीम नहीं है। मैं चाहता हूं कि दोबारा इससे शादी कर लूं। क्या इसका कोई आसान तरीका है? ये सुनकर इमाम को तो जैसे सांप सूंघ गया था। तुम जानते हो कि यहाँ पर हलाले का मतलब क्या है?
वही है जो बाकी इस्लामी मुल्कों में है। तुम यहाँ क्या ढूंढने आए हो? तुम्हें क्या लगा तुम्हारे मुल्क का खुदा और यहाँ का खुदा कोई और है? कायदे कानून और है? यहाँ भी सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है। तुम्हें उसी तकलीफ से गुजरना पड़ेगा जिससे बचकर तुम शायद यहाँ आए हो। जहाँ तक बात मुझे समझ में आती है, तुम यही सब करने तो इधर आए हो, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। मैंने देखा कि इमाम साहब के पास एक और आदमी भी खड़ा था जिसने काले कपड़े पहन रखे थे, सर पर काले रंग की टोपी भी थी। वो हमें बहुत ध्यान से देख रहा था। उसने सुफियान को इशारा किया कि तुम बाहर जाओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। वो सुफियान को लेकर बाहर चला गया। मैं भी उसके पीछे पीछे आई। वो आदमी बहुत अच्छा लग रहा था। सुफियान से कहने लगा कि तुम्हें फिक्र की जरूरत नहीं है। अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो मैं तुम्हारे रहने का बंदोबस्त भी कर लेता हूँ, क्योंकि बिना ठिकाने के तुम इधर उधर कब तक फिरते रहोगे। और क्योंकि तुम यहाँ पर हमारे मेहमान हो तो मैं तुम्हारी इस परेशानी का हल भी तुम्हें ऐसा बताऊंगा जो तुमने आज से पहले कभी नहीं सुन रखा होगा। मैं और सुफियान थोड़ा सा खुश जरूर हुए थे, क्योंकि उस आदमी ने हमें एक उम्मीद दी थी जो आज से पहले हमें कभी नहीं मिली थी। हम लोग उसके एक छोटे से दिए हुए कमरे में जाकर अपना सामान रख कर बैठ गए। उस आदमी ने कहा कि वो कल आएगा और हमें एक ऐसी बात बताएगा जो हमने आज से पहले नहीं सुन रखी होगी। मैं और सुफियान दोनों ही बहुत खुश हो गए थे, क्योंकि जिस मुश्किल में हम थे हमें जरा सी उम्मीद भी बहुत बड़ी लग रही थी। हम लोग दोनों रात भर उसी का इंतजार करते रहे थे। उस शख्स ने अपना नाम भी नहीं बताया था हमें, या शायद सुफियान को याद नहीं रहा था। बस हमें उसकी कही हुई वो बात याद थी कि वो एक ऐसा रास्ता जानता है जिससे हम दोनों फिर से एक हो सकते हैं, और उसके लिए हम दोनों को किसी तरह की परेशानी भी उठानी नहीं पड़ेगी। सुबह सवेरे वो आदमी आ गया। उसने घर के दरवाजे पर कुंडी बजाई। यहाँ हमारे जानने वाला और कोई नहीं था। हमें पता था कि ये वही इमाम साहब का दोस्त होगा जो हमें खुशखबरी देने आया है। हमने दरवाजा खोला तो वो फौरन ही घर के अंदर आ गया। देखो, मुझे यहाँ बहुत सारे लोग जानते हैं। अगर मैं अजनबियों से मिलूंगा तो उन्हें मुझ पर शक हो जाएगा। इसी वजह से मैं सीधा कमरे के अंदर आ गया। आप लोग नाराज मत होना। मुझसे उसने ये सब कहा और साथ ही उसने अपनी जेब से एक थैली निकाल ली जिसमें हरे रंग का कपड़ा था। ये क्या है? मैंने और सुफियान ने उससे एक साथ ये पूछा था। देखो, तुम्हें शायद ये बात समझ नहीं आएगी, मगर मैं तुम्हें एक ऐसी जगह बताऊंगा जहाँ जाने से तुम्हें हलाला वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ हम सभी लोग जाते हैं। इस जगह के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाऊंगा। वहाँ तुम जाओगे तो सब गुनाहों से पाक हो जाओगे। वहाँ जाकर तुम्हें एक गुस्ल भी करना होगा, एक खास गुस्ल जिसे गुनाहों से पाक होने के लिए किया जाता है। गुनाह हो या किसी भी तरह की कोई भी नापाकी, जैसे ही तुम वहाँ पर गुस्ल करोगे और उस पत्थर का इस्तेमाल करोगे तो तुम देख लेना तुम सब गुनाहों से पाक हो जाओगे। तुम नापाकी से पाकी की तरफ आओगे और गुनाहों से नेकी की तरफ। मगर ये काम करना कैसे है? मैंने बड़ी परेशानी के साथ उस आदमी से पूछा तो वो कहने लगा, देखिए जी, ये लोगों की सोच है कि वहां पर गुस्ल करने से उनके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, और आप करके देख लीजिए। आपको अगर ऐसा महसूस ना हुआ तो आप ये काम मत कीजिएगा। लेकिन वहां लाखों लोग जाते हैं। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो अपने बहुत बड़े बड़े गुनाहों की माफी करवाते हैं वहां जाकर। उस आदमी की बातें सुनकर मुझे और सुफियान दोनों को बहुत मायूसी हुई थी। वो तो मुझे कोई पागल ही लगा था। ऐसा लगता था कि वो किसी ख्याली दुनिया में रहता है। हम दोनों ने उससे और बात करना सही नहीं समझा। चलिए ठीक है, हम आपको बता देंगे। फिलहाल हम इस सब पर यकीन नहीं करना चाहते। हमारी ये बात सुनना थी कि वो आदमी गुस्से से भड़क उठा। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? अगर तुम मुझ पर यकीन ही नहीं करते तो मेरे घर क्यों रुके हुए हो? जाओ यहाँ से, निकल जाओ। मैं तुम्हें उस जगह ले जाने के लिए लाया था, पर तुम तो बड़े ही बेईमान किस्म के लोग हो। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा कि मैं जो कह रहा हूँ वो सच है। आखिर अगर तुम इस बात को मानते नहीं भी हो तो भी कम से कम तुम्हें एक बार वहां चलना तो जरूर चाहिए ना। वो आदमी हमसे कहता गया और हम दोनों नासमझी में उसे देखते रहे थे कि अब क्या करें। वो जो बातें कर रहा था वो न सिर्फ नाकाबिले यकीन थी बल्कि नाजायज भी थी। हम उसकी बात बिल्कुल नहीं मान सकते थे। गुस्से में आकर उसने हमें घर से निकल जाने को कहा। अब तो ये सुबह सुबह का वक्त था। हमने शुक्र किया कि उसने हमें रात को नहीं निकाला। सुबह फजर की अजान हुई थी और थोड़ी थोड़ी रोशनी भी फूट रही थी। मुझे वहां से निकलकर एहसास हुआ कि बेघर होना कितनी बड़ी मुसीबत है। लेकिन फिर मुझे सुफियान ने एक प्लान बताया जिस पर मैंने अमल किया, और सुफियान ने मुझसे कहा कि वो यहीं कहीं चक्कर लगाता रहेगा, मुझसे मिलता रहेगा। मैं अगर ये कर लूंगी तो हमारा मिलना आसान हो जाएगा और उसके बाद वो मुझे वापस हिंदुस्तान ले जाएगा। मैंने उसका प्लान समझ लिया था। ये ख्याल बहुत अच्छा था मगर साथ ही साथ उतना ही खतरनाक भी था। मैंने मगर सुफियान के कहने पर यह काम किया। मैं मस्जिद के पास चादर ओढ़कर यूं बैठ गई जैसे मैं रात से यही थी। थोड़ी देर के बाद जब नमाजी आना शुरू हुए तो एक आदमी ने मुझे भी देख लिया।
शायद नमाजी नमाज पढ़कर जा चुके थे। उसने जो मुझे मस्जिद के फर्श पर यूं पड़े देखा तो कहने लगा, क्या बात है लड़की, तुम कौन हो और यहाँ क्यों लेटी हुई हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि मस्जिद में फर्श पर ऐसे नहीं लेटते? मैंने उठते ही उसके आगे हाथ जोड़ दिए। आप कोई नेक आदमी लगते हैं। देखिए, मेरा कोई घर नहीं है। अगर आप मुझे घर में रहने की थोड़ी सी जगह दे देंगे तो मैं हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। मेरी बात सुनकर वो मेरे चेहरे की तरफ देखने लगा। शायद मेरी खूबसूरती ने उसे घायल कर दिया था। मैंने उसके पाँव छुए तो वो जैसे करंट खाकर पीछे हट गया। ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें होश नहीं कि तुम क्या बातें कर रही हो? मैं इस मस्जिद का इमाम हूँ और शादीशुदा हूँ। तो क्या हुआ, मैं आपकी दूसरी बीवी बनने को तैयार हूँ। वैसे तो सब लोग बेसहारा को सहारा देने की बात करते हैं, लेकिन मुझसे तो कोई बात भी नहीं करता, ना ही मुझसे कोई शादी करना चाहता है, सिर्फ इसलिए कि मेरे शौहर ने मुझे तलाक देकर मुझे घर से निकाल दिया। मेरा कोई सहारा नहीं, माँ बाप भी नहीं है। आप अगर मुझसे शादी नहीं करेंगे तो शायद मैं यूं ही जलील होती रहूंगी। मेरी जज्बाती बात सुनकर वह आदमी कुछ सोचने लगा, फिर बोला कि चलो ठीक है, अगर तुम मेरी शर्त पर मुझसे निकाह करने को तैयार हो तो मुझे भी कोई ऐतराज नहीं है, न मेरी बीवी को होगा। ये कहकर उसने कुछ लोगों को बुलाया, अपनी बीवी से भी बात की। उसकी बीवी बेचारी क्या बोलती, वो तो सिर्फ बर्दाश्त ही कर सकती थी मुझे, क्योंकि यहाँ की औरतों को शायद अपने मर्दों के सामने बोलने की ना ही आदत थी और ना इजाजत। खैर, मैंने उस आदमी से निकाह कर लिया जो यहाँ की मस्जिद का इमाम था। मेरा प्लान बहुत जल्दी कामयाब हो गया था। इतनी जल्दी इस प्लान की कामयाबी के बारे में तो मैंने सोचा भी नहीं था, मगर ऐसा हो चुका था और अब मैं बहुत ज्यादा खुश थी। मैं सोच रही थी कि बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर ये आदमी मुझे छोड़ देगा, मगर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। उसने मुझसे कहा कि वो मुझे कुरान पढ़ाएगा और जब तक मैं कुरान नहीं पढ़ लेती तब तक वो लोगों को मेरे निकाह के बारे में नहीं बताएगा। कुछ ही करीबी दोस्तों को पता है, वलीमे की दावत भी वो बाद में ही करेगा। मैं हैरान थी कि वो तो अपने दीन ईमान का बहुत पक्का था। मैंने सोचा था कि अब मैं इसे सच बताऊंगी तभी वो मुझे तलाक देगा, वरना तो उसके इरादे ऐसे पक्के थे जैसे वो मुझसे पहली शादी करके मुझे अपने घर लाया है। फिर एक दिन इस बात की नौबत खुद ही आ गई। एक दिन इमाम साहब अपनी छोटी बेटी को गाने सुनने के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें बता रहे थे। वो उसे कहते कि गाने सुनने वाला काफिर हो जाता है। उसी दिन तो मैंने अपने शौहर से मिलकर उससे कह दिया कि मुझे कहीं से रेडियो लाकर दे दो, मैं रेडियो सुनूंगी और मौलाना साहब को गुस्सा दिलाऊंगी। मैं ये बात अपने शौहर को बताकर वापस आ गई। शाम तक उसने एक छोटा रेडियो मस्जिद के पास में रख दिया, जिसे मैंने उठाकर देखा तो वो अच्छी तरह चल रहा था। सुफियान को भी पता चल गया कि मैं अब क्या करने जा रही हूँ। वो मस्जिद के आसपास ही रह रहा था और फिर शाम को वही हुआ जो मैंने सोचा था। मैंने रेडियो को ऊंची आवाज में चलाना शुरू किया। उसमें से गाने बजने की आवाज आने लगी तो मौलाना साहब करंट खाकर उठ बैठे थे, जैसे उन्हें बहुत बुरा लग गया हो। ये रेडियो कहाँ से लाई हो तुम? जहां से भी लाई हो इसे वापस कर दो। अगर तुम्हें सुनना ही है तो कुरान सुन लो। मौलाना ने ये कहकर रेडियो मुझसे छीना तो मैंने ऊंची आवाज में कह दिया, मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ लेकिन गाने सुनना नहीं। ये मेरा पुराना शौक है। ये सुनना था कि इमाम की आंखों में जैसे एक अंगारे से भड़क उठे थे। तूने मुझसे बदतमीजी की। आज तक किसी औरत ने मुझसे यूं लहजे में बात नहीं की, तो क्या कर लोगे तुम मेरा? मैं बीवी हूं तुम्हारी, छोड़ तो नहीं सकते ना मुझे तुम। इतनी खूबसूरत हूं कि किसी में हिम्मत नहीं कि मुझे छोड़ सके। तुम भी आजमा कर देख लो। मेरे गुरूर को तोड़ने की खातिर उसने वही वो 3 शब्द कह दिए तो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये इतना आसान होगा। फिर मैंने अपनी मुस्कुराहट को फौरन ही दबा ली कि कहीं इमाम के गुस्से को दावत न दे दूं। मैंने चेहरे पर मजलूमियत की एक चादर ओढ़ ली और वहां से अपना सामान उठाकर बाहर आ गई, जहां सुफियान मेरा इंतजार कर रहा था, क्योंकि आज जो मैंने सोचा था वो पूरा हो चुका था और अब हम दोनों को एक साथ रहने से कोई नहीं रोक सकता था। दोस्तों, क्या ख्याल है आपका इस कहानी के बारे में? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।